हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लासेस। हाँ जी बेटा, हमने 10th और +2 में वीडियो डाली हैं जो कि मैथ्स में सीबीएसई एनसीईआरटी से हैं। उनमें ये पूरा सेशन हमारा 2024 टू 2025 कंप्लीट हो गया। इस सेशन में हमने सिलेबस किया, उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन for the board exam chapter wise we have discussed. Okay, so that is completed because 10th and the +2 board exam of the mathematics 2025 exam is over. Okay, so अब हम क्या करना चाहते हैं, अब आगे हम न्यू स्टूडेंट्स जो हैं, आपने जो 9th क्लास पास किया है, 9th का एग्ज़ाम दिया है, अप्रोचिंग टू 10th क्लास एंड +1 के एग्जाम दिया है या रिजल्ट आने वाला है, दे विल गो इन द +2 यानी दे आर अप्रोचिंग टू द +2 क्लास। तो इन द मैथमेटिक्स सीबीएसई एनसीईआरटी आई एम डिस्कसिंग द syllabus, question, solution, NCERT solution, and some important concept on every chapter. Any concept how has been made and why anything, what, okay, but why must be put behind each truth statement, behind each truth identity, behind each truth formula and other relations which are the important relations and identity in the algebra and in arithmetic and in other trigonometry, other branches, trigonometry, real number system, algebra, coordinate geometry, only geometry and probability. Like these branches and statistics, in these all branches in the mathematics, some truth statements are there, truth definitions are there. तो उनके बारे में उनका जो बेसिक फंडा है, कहाँ से वो आए हैं, क्यों बनाए गए हैं, कहाँ कहाँ यूजेस है उनका, हमारी डेली लाइफ में कहाँ यूज होते हैं, जो हमारी डेली लाइफ है, रूटीन है हमारा डेली लाइफ का, इसमें कोई मैथमेटिक्स का कोई भी ब्रांच है तो कहाँ कहाँ यूज हो रही है, कैसे यूज हो रही है, हाउ, वाई, हाउ, व्हाट, behind each one you put to understand, because maths is depend on the understanding. Without understanding you can't remember. In your internal feeling, internal thinking, any concept, any point, any truth thing, any formula will be permanently if you put behind each formula, each identity, each standard statement in any branch of mathematics, put what, how, why, क्या है ये, कैसे आया और कहाँ से आया, फ्रॉम वेयर एंड वाई, क्यों आया, इसका यूजेस क्या है, कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, ये जरूरी है समझना। तो इसलिए मैं कोई भी चैप्टर शुरू करता हूँ, मेरी वीडियो देखना, तो उस चैप्टर के कंसेप्ट, जो उसके स्टैंडर्ड फॉर्मूला वी कैन से, या थिंग्स टू रिमेम्बर वी कैन से, याद रखने की चीज़ें जो उस चैप्टर की हैं, वो यानी कि वो स्टैंडर्ड थिंग्स है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, तो उनके पीछे पुट करना व्हाट, हाउ, वाई एंड फ्रॉम वेयर, who has given, which mathematician given to this, and what is the requirement of this, and
where are using, in which field these concepts are used. So these many things are there behind everything which you remember in every chapter. तो आज मैं क्या कर रहा हूँ, 10th and 12th के पेपर तो ओवर हो गए, 9th approaching to 10th, 9th student approaching to 10th, and 11th students approaching to 12th. So for 10th and 12th, I am giving some things, general basic things, basic maths, basic concept, general maths, general thing which you have to remember, which you have to think, or which you have to apply to remember the mathematics, to understand the mathematics. After that, our behavior, what will come out from these questions, putting what, why, how, and from where, and for which this is in our front in mathematics. So all these points, if you will put, your behavior will change, your thinking will change, and then you will feel easy to understand any concept, anything to understand in mathematics. Your thinking must be the positive and fact and accuracy, quickly. Then you will remember, you will not forget. तो कोई भी चीज सीखना है, कोई भी थिंग, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी कंसेप्ट, कोई भी पॉइंट, कोई भी न्यू आइडेंटिटी in your mind, that must be there. That means questions, put question behind that to understand. Everything depend on understanding. Maths is depend on understanding. Other name of maths, fact in our life. Other name of mathematics, understanding. अगर तुमने कोई भी थिंग्स को अंडरस्टैंड कर लिया, किसी भी सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर लिया, तो इट मीन्स यू आर द मैथमेटिशियन. Mathematics gives us to take the decision behind any situation or problem quickly and the fast and the accurate and finalize. We are not in politician type situation. ये सिचुएशन देखकर सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने, उसमें तो फैक्ट है, या तो ट्रू है या फॉल्स है, या राइट है या रॉन्ग है. जो भी स्टेटमेंट आप बोल रहे हैं लाइफ में, कोई भी सिचुएशन आपके सामने, उसके सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं? ये तो वो यस ओके वो पॉजिटिव है, नो वो नेगेटिव है, नहीं नहीं है, यस है ठीक है, गलत है. ये तो डिसीजन है. But who are the politicians? They will not say like that, like in mathematics. Their life is the different life. We have not go behind that. We have to think about the mathematics, how can learn, how can remember the mathematics. So mathematics to learn, you should put behind every problem 3-4 questions. I told you, I am repeating again. सबसे पहले put करो what, क्या है ये, हाउ कैसे आया है, वाई क्यों आया, एंड फ्रॉम वेयर कहाँ से आया,
वाई क्यों आया, उसमें यूज क्यों आया, क्योंकि हमें अपनी लाइफ को आगे एक्सप्लोर करना है, उसके लिए जरूरत है, रिक्वायरमेंट है हमारी। सो टू लर्न द मैथमेटिक्स you should remember these things. You are approaching in +1 today. आज हम जो 11th पास हैं वो अप्रोचिंग इन +2। तो 11th पास स्टूडेंट और रिजल्ट आ गया नहीं आ गया आने वाला है, आप अप्रोच कर रहे हैं 12th क्लास को, तो उनके लिए मैं कुछ पॉइंट बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे एक पॉइंट आपका है, क्या है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, आप लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में अगर ये आपके पास साइन पावर 4x प्लस cos power 4, if this, तो what is the simplest form of this, मीन्स ये हमें इस टाइप का दिख रहा है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू कहाँ से निकालें हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, दिस आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स स्क्वायर का स्क्वायर, a पावर 4 प्लस बी पावर 2 का होल स्क्वायर, बी पावर 4 प्लस 2ab, a is a square, b is, you know in 10th class you have done this। तो ये देखो यहाँ अगर ये हम क्या लिखें, इसको लिख लें यहाँ पर, इसकी वैल्यू अगर निकालें, यही करें, ए स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर एक्स कहें प्लस कोस स्क्वायर एक्स, क्या पुट किया मैंने यहाँ, a इज इक्वल टू साइन एक्स, b इज इक्वल टू कोस एक्स, क्या बन गया, साइन पावर 4x बन गया बेटा, प्लस कोस स्क्वायर का स्क्वायर कोस पावर 4x, ओके, एंड प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर विद साइन स्क्वायर into b means cos square, this अब हम जानते हैं आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 10th क्लास में किया है, +1 में, तो ये आप +2 के लिए यूज हो जाएगा, डायरेक्ट क्या बन जाएगा 1, दिस इज 1 स्क्वायर, दिस होल स्क्वायर, then 1 square is equal to this, same, then what will come, sin power 4x plus cos power 4x, ये इधर आ जाएगा, क्या बनेगा sin power 4x plus cos power 4x will be equal to, ये प्लस इधर से इधर माइनस आ जाएगा, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos ओके, अब ये आपकी वैल्यू बन गई। अगर एक ही टर्म में आप चाहते हो कि ओनली इन साइन फॉर्म, इट कैन बी सॉल्व
-2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू कोस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर। if in sin form you want, then multiply 1 minus 2 sin square x into 1 2 sin square x and minus minus plus 2 sin power 4x स्क्वायर स्क्वायर की मल्टीप्लाई। तो प्योर साइन की फॉर्म में ये भी रिजल्ट देख सकते हैं आप, ठीक है बेटा। तो लाइक दिस यू कैन राइट, so you should know this other one point, ठीक है। अब एक पॉइंट और है, हाँ बेटा, जैसे आपने ही करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, और स्क्वायर का भी फॉर्मूला, और एक आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक लिखना और इसको, तो फर्स्ट टर्म तो सेम आएगी, ए पावर ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए पावर 4 प्लस बी पावर 4, दोनों सेम आएंगे। इधर प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, इधर माइनस आएगा, तो इक्वल कब हो, जब इधर भी प्लस बने। तो प्लस कैसे बनेगा, इधर प्लस के 4 कर दो यहाँ, ए स्क्वायर बी, अब दोनों सेम हो जाएंगे, ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। चेक करो, चेक इट, लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड, क्योंकि यहाँ पर क्या बनेगा, ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर प्लस था 2, इधर माइनस बन गया यहाँ पे, अब उसको भी प्लस ही बनाना, सेम करना है इक्वल, तो यहाँ प्लस के 4 कर दिए, माइनस का 2 था, तो प्लस 4 और माइनस 2 प्लस 2 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब ये सेम है, बोथ साइड इक्वल, तो ये कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर कहीं भी यूज किया जा सकता है, ये स्टैंडर्ड है, बहुत यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्री में यूज हो जाएगा, कहीं और यूज हो जाएगा ऐसी सिचुएशन। ये मैथमेटिकल टूल्स है, इनको हम कहते हैं मैथमेटिकल टूल्स। टूल्स का मतलब क्या होता है, जैसे कोई मशीनरी है और ट्रैक्टर ही है, उसका बोलते हैं टूल बॉक्स, टूल बॉक्स उसकी सभी चाबी, ठीक है, जो उसमें ट्रैक्टर के लिए यूज हो रहे हैं, कोई भी मशीनरी के लिए यूज हो रहा है, चाबियां हैं और कुछ है, जैक्स हैं, वो टूल्स होता है। तो टूल बॉक्स तो मीन्स मैथमेटिकल टूल्स क्या है, जो मैथमेटिक्स को प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। जैसे मशीनरी का मशीन टूल्स है, जो उस मशीनरी की प्रॉब्लम्स है, उस टूल्स में चाबी होती है, उससे वो सॉल्व हो जाता है। यानी कि उसके कोई पेज खराब हो गया, कोई चाबी लगाई, कुछ और प्रॉब्लम आ गई, तो इस टाइप से मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम है, कोई सॉल्यूशन निकालना है, कहीं पर क्वेश्चन है, तो उसमें क्या यूज होगा, मैथमेटिकल टूल्स। टूल्स क्या है, जैसे इक्वेशंस आपकी होती है, ये इक्वेशंस है, इक्वेशंस का मीनिंग लेफ्ट हैंड एंड द राइट हैंड बोथ आर द इक्वल। जैसे बैलेंस है, तराजू है, इक्वेशन कहाँ यूज हो रही है, बैलेंस। डेली लाइफ में मटेरियल खरीद रहे हैं, एक साइड मटेरियल है, दूसरी साइड उसका वेट है, तो मीन्स इक्वल जब हो जाते हैं, हाँ ठीक है, और इक्वल नहीं हुआ तो आप कहेंगे नहीं कम तोड़ रहा है, ज़्यादा तोड़ रहा है, इक्वल बैलेंस होना चाहिए। तो बैलेंस सीखना है, इक्वल सीखना है, तो इक्वल ये हमारे बिहेवियर में आ जाता है, तो इक्वलिटी, ठीक है। अब ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। इसके बाद एक पॉइंट और है, ओके, इक्वेशंस में ही है, ओके, क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यू नो इन 10th 11th क्लास
you know x axis y coordinate quadrant, okay, in 2 dimensions, ठीक, you know very well, you are approaching to that. अगर यहाँ ये जो आपका एक्स वाई है एक कोई और यहाँ पर शिफ्ट हो जाए, शिफ्ट होने का मतलब यहाँ से ओरिजिन ये पॉइंट पर शिफ्ट हो जाए, ये 0 0 ओरिजिन है, समझे, ठीक है, यहाँ ये शिफ्ट हो गया, ये शिफ्ट हो गया, यहाँ की बजाय मैं इसे इधर ले लेता हूँ, यहाँ शिफ्ट हो गया -1 और +1, यहाँ से -1 and 1 इस पॉइंट पर यानी if origin shift here, understand, if origin shift here, ओरिजिन शिफ्ट हो गया, यहाँ 0 0 भी, यहाँ 0 0 है, which point if coordinate minus, if coordinate 1, 2 any point A, ध्यान से समझे, फर्स्ट यहाँ से 1, 2 1 और 1 2 ये यहाँ है, एनी पॉइंट यहाँ है, ठीक है, ये 1, 2 ये कहाँ शिफ्ट होगा, पॉइंट ए, न्यू सिस्टम में कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इफ ओरिजिन शिफ्ट 0 to 0 ये है एट -1, 1 पर शिफ्ट हो गया, ये ओरिजिन है, न्यू origin shifted at -1 to 1, तो ये पॉइंट 1, 2 क्या पढ़ा जाएगा, व्हाट वी हैव टू रीड द पॉइंट 1, 2, बताओ, यहाँ से अब ओरिजिन हो गया, देख कितने स्टेप है, यहाँ पर एक स्टेप ये है और ये 1 स्टेप ये, तो भी यहाँ से 0 0 से 2 स्टेप हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट इसका 2 बनेगा, यानी -1 तो उसमें ऐड हो गया ऑपोजिट साइन, और y1 है, y ऊपर शिफ्ट है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है, इसके अकॉर्डिंग ये क्या पड़ा जाएगा, ये 1 कम हो जाएगा y, ठीक है, ये y1 आ जाएगा, तो न्यू ये जो 1, 2 ये शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पर, 1, 2 क्या पड़ा जाएगा, यहाँ से 2, यहाँ से जब ये x ओरिजिन है, नया ओरिजिन है, तो न्यू ओरिजिन, न्यू ओरिजिन, ये अंडरस्टैंड करो, ओरिजिन इस पर है तो ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ ये -1 था तो इसमें ये प्लस हो जाएगा, और ये +1 था तो ये -1 हो जाएगा, 2 - 1 1 ये हो जाएगा, देखिए ये सीखना है, पढ़ के देख लो, प्रैक्टिकली मैंने बताया, अब ये 0 है, यहाँ न्यू x एक्सिस y एक्सिस, तो ये 0 0, तो ये 0 0 के अकॉर्डिंग अब ये पॉइंट यहाँ 1, 2 था, क्या बनेगा, देखो 1 स्टेप ये है ऑलरेडी, 1 स्टेप राइट हैंड एंड 1 स्टेप ये था यहाँ ओरिजिन से ये, तो 2 स्टेप, तो x कोऑर्डिनेट 2 बन गया, एंड y कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ से y कोऑर्डिनेट 1 स्टेप है, ये 2 स्टेप था, y कोऑर्डिनेट यहाँ से 2 स्टेप, तो यहाँ से कितना होगा
ये न्यू ओरिजिन है तो ये 1 स्टेप रहेगा 1। तो ये +1 था, ये -1 हो गया, ये -1 था, ये +1 हो गया, ऑपोजिट साइन। तो अब बताओ इसी सिस्टम में अगर मैं पूछूं 2, -3 ये कहाँ शिफ्ट होगा, कहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब ये -1 है तो +1 हो जाएगा इसमें, बस तो +1 हो गया, 3 बन गया। और ये +1 है तो -1 हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा। ये न्यू सिस्टम से ये पॉइंट रीड करा जाएगा इससे 3, -4। तो दिस पॉइंट विल शिफ्ट हियर 3, -4 because this origin shifted -1, origin shifted -1, 1, so this point will shift 2, 1, this point will shift 3, -4। कंपटीशन के लिए न्यू टेक्निक से पता लग रहा है, देख लो, आप पढ़ के देख लो, बना के फिगर बना के देख लो, तो स्टैंडर्ड थिंग बन गई कि जो जितना ये ओरिजिन शिफ्ट हुआ, कोई पॉइंट शिफ्ट होने के लिए ओरिजिन जो शिफ्ट हुआ है इसमें एक्स कोऑर्डिनेट जो भी है वो माइनस कर दो, वहां एक्स कोऑर्डिनेट जो है उसका ऑपोजिट साइन ऐड कर दो, और जो वाई कोऑर्डिनेट है उसका ऑपोजिट साइन लेकर ऐड कर दो। सम ऑफ ऑपोजिट साइड इन एक्स, सम ऑफ ऑपोजिट साइड इन वाई। ये -1 था तो +1 हो गया, 2 बन गया, ये +1 था तो -1 हो गया, 2 -1, ये +2 था तो इसमें ये +1 हो गया, 3 बन गया, ये -3 है और ये +1 है, +1 का -1 हो जाएगा, तो -3 -1 -1। तो ऑलवेज दिस फार्मूला के ऑपोजिट साइन लेकर जो ओरिजिन शिफ्ट हुआ है जितने पर ऑपोजिट साइन उसका देकर उसमें किसी भी पॉइंट को शिफ्ट करके लिख सकते हैं, वी कैन राइट। तो इम्पोर्टेंटली मेक इन माइंड दिस, ओके। One point I want to tell, you normally +1 you read everything, ठीक है, फंक्शन यू रेड +1 में, +2 में जाना है। तो फंक्शन में आपको पता है क्या कि एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन बट सम रिलेशंस आर फंक्शंस, ओके। कैसे, यूनिक इमेज वाले, ठीक है, यूनिक इमेज, विच रिलेशन हैज यूनिक इमेज, मीन किसी एक वैल्यू x पर यूनिक ही वैल्यू y आए, वन एंड ओनली वन, एनी वन, ये नहीं कि 2,3 भी है, 2,4 भी है, 2,5 भी है, रिलेशन तो है बट दिस इज नॉट फंक्शन, यू नो। तो ऑल फंक्शंस, जब किसी एलिमेंट में किसी फंक्शन इज ए सेट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन फंक्शन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए फंक्शन, इफ 3 है, 3 ऑर्डर 10 है, if the number of element all function, इसमें 3 एलिमेंट है किसी फंक्शन में, 3 ऑर्डर 10 है, ऑल फंक्शंस, नंबर ऑफ ऑल फंक्शंस विल बी, कितने फंक्शन बनेंगे इसके सबसेट, जिसमें 3 एलिमेंट है उसके सबसेट, सबसेट का फॉर्मूला है जितने एलिमेंट है उसकी पावर 2 पावर n, 2 पावर n, 3 एलिमेंट है तो 2 पावर 3, 8, तो ये फॉर्मूला 2 पावर 3, दिस 8 सबसेट बनेंगे जिसमें 3 एलिमेंट है। किसी सेट में अगर 3 एलिमेंट है उसके ऑल द सबसेट यू राइट इन +1, 2 पावर n, ओके। 2 एलिमेंट है 2 पावर 2, 4। इफ एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट 5,
if, so how many element in empty set? Number of element in empty set 0. काउंटिंग, कोई एलिमेंट नहीं होता, नो एलिमेंट, तो 0 एलिमेंट है, तो इसका मतलब ऑल सबसेट नंबर ऑफ ऑल सबसेट ऑफ 5 कितने बनेंगे, कितनी काउंटिंग बनेगी, 2 पावर 0, 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन 0, दैट इज 1, एनी नंबर पावर 0 1, तो इसका क्या बनेंगे, एक सबसेट, ऑल द सबसेट, ठीक है, तो ला नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सबसेट, तो these things you should remember. Now I will tell something more. Forward, like, share and subscribe the channel and send the video to the maximum contact and guide them. They must watch, like, share and subscribe the channel. New students, subscribe the channel to get the next notification with you. You will see the all videos which I have given by me. मैंने दी है जो वो वीडियो भेजी हुई है, आपको उनका लिंक मिल जाएगा अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, तो डिस्क्रिप्शंस में नीचे मैंने लिंक दिए हुए हैं, सारी जितनी भी अपलोड हुई हैं एक अलग फोल्डर है उसका लिंक दिया हुआ है, ऑल चैप्टर्स, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एवरीथिंग यू विल गेट बाय सर्चिंग इन द यूट्यूब में जाओ सर्च कर लो, ठीक है, उस लिंक के अकॉर्डिंग आप सब कर सकते हैं। पहले सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब करें, अगर न्यू स्टूडेंट है तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।